Hello students, welcome back. Today we are going to start Unit 1 Digital Documentation at Advanced Level. This is the part 1 video of this unit. In this unit we are going to work upon styles in a document and the software which we will be using here is openoffice.org. So according to the new syllabus prescribed by the CBSE, we have the particular topic today, that is create and apply styles in the document, and these are the topics which we will cover today in theory as well as the practical part. So in the practical part we have list style categories, select the style from the styles and formatting window. Basically today we'll be working on the styles in a document. In order to work on this we need OpenOffice software and it can be downloaded from the website www.openoffice.org. Let us learn how to download it. First of all, you have to open any web browser in your computer and you have to type in Google OpenOffice and press the enter key. As soon as you press the enter key, so many links will open. You have to open this link which says www.openoffice.org. This is the website and the link is Apache OpenOffice official site, the free and open source software. And then you have to click on this link. After clicking on this link, a new window will open and you will see here the download page. It will ask you about your operating system, so from here you can select the operating system. Basically we have Windows only, so here I have selected the Windows. If it is yours is any other, you can select from here. This is the language and this is the version. So here are two options given. You have to click on download full installation and the dialog box will appear. It will start installing all the files. After that you have to click on next every time and then at last finish. So that software will be downloaded in your computer. Here you can see the shortcut icon of OpenOffice 4.1.7. So you have to double click on this software in order to open it. So this is basically the software. When you open it for the first time, it will look like this. Since here we are working in the documentation part, so here we have to click on the text document. So the window of text document will open like this and this is our parts of the window. At the top you can see this is the title bar. It is written OpenOffice Writer. Okay, so here is Untitled 1 written since the file has not been saved and by default the name is Untitled 1. This is the logo of the OpenOffice Writer. Then we have the menu bar with the different options. Then we have the standard formatting toolbar with the different options for formatting, cut, copy, paste, print, so many other options. And then we have the formatting toolbar for formatting of the text or the paragraph, whatever we write in the document. Okay, so basically what is digital documentation? That is when we write electronically anything like letter, paragraph or any other text, that is known as digital documentation. The process of writing this online is known as electronically is known as digital documentation. So first of all, let us understand what is a style. A style is a set of formats that you can apply to the selected text, pages, frames and other elements in your document to quickly change their appearance. आप कभी भी जब डॉक्यूमेंट के ऊपर वर्क करते हैं, आपको किसी भी टेक्स्ट का साइज चेंज करना है या फ़ॉन्ट चेंज करना है, फर्स्ट यू सेलेक्ट इट एंड देन यू चेंज इट. अलग अलग टेक्स्ट के लिए आप अलग अलग उसे सेलेक्ट करके चेंज करते हैं. लेकिन स्टाइल का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपने किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को एक पर्टिकुलर साइज़ दिया और एक पर्टिकुलर फ़ॉन्ट दिया और उसका कुछ आपने उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज किया. अब आप ये चाहते हो कि बार बार वही प्रॉपर्टीज़ मुझे दूसरे टेक्स्ट पे ना लगानी पड़े, मेरे पास एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट हो कि बस मैं उसको सिलेक्ट करूं और वो मेरा चेंजेस जो मैंने पहले किए थे टेक्स्ट रिलेटेड, फ़ॉन्ट रिलेटेड, साइज़ रिलेटेड, वो सारे अपने आप हो जाएं. तो उस केस में स्टाइल्स आपकी हेल्प करते हैं जिसके अंदर आप सेलेक्टेड टेक्स्ट, पेज, फ्रेम या किसी अदर एलिमेंट को अपने डॉक्यूमेंट में उसके अपीयरेंस को चेंज करने के लिए आप कुछ फॉर्मेट्स हैं वो सेट कर देते हैं. दैट इज़ नोन एज अ स्टाइल. In openoffice.org we have the following style. आप किस किस चीज़ पे स्टाइल लगा सकते हैं? पैराग्राफ स्टाइल्स आर देयर, कैरेक्टर स्टाइल्स आर देयर, फ्रेम स्टाइल्स आर देयर रिलेटेड टू इमेजेस, पेज स्टाइल्स आर देयर, पेज के ऊपर अगर आप स्टाइल्स लगाना चाहते हैं. एंड देन वी हैव द लिस्ट स्टाइल्स. लिस्ट स्टाइल्स में आपका क्या आ गया कि अगर आपकी टेक्स्ट जो है वो लिस्ट फॉर्म में है, 1 2 3 4 सीक्वेंस में है या इस तरह से है, तो उसमें आप लिस्ट के स्टाइल्स लगा सकते हैं. सो दिस इज़ आवर सॉफ्टवेयर OpenOffice Writer. ठीक है, द फर्स्ट पॉइंट इन इट इज़ टू क्रिएट अ स्टाइल.
First of all, we have to open this. So our first topic is list style categories. Select the style from the style and formatting window. सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टाइल ऑप्शन आपका कहाँ रहता है, कौन कौन से डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं और कैसे हम स्टाइल्स को अप्लाई कर सकते हैं. Now here we have three statements: hello student 1, hello student 2 and hello student 3. स्टाइल्स का ऑप्शन आपका कहाँ रहता है? एक तो आपके पास ये फॉर्मेटिंग टूल बार पे यहाँ पे आपका डिफॉल्ट लिखा हुआ है, ये आपका स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शन है. फॉर दिस यू हैव द शॉर्टकट की ऑल्सो F11. या तो आप कीबोर्ड से शॉर्टकट की F11 प्रेस कर सकते हो या फिर यहाँ पे इस ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तब भी आपके पास स्टाइल्स आ जाएंगे. दिस बॉक्स इज नोन एज द स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स. One other option to open this is click on the format menu and choose the option styles and formatting. We have three options. One is the shortcut key F11, one is from the menu format menu, and one is the icon on the formatting toolbar. Now we have the style and formatting dialog box. Let us understand it. First is the paragraph styles. ये जो आपको नेम दिख रहे हैं ये सारे पैराग्राफ के स्टाइल्स हैं. Second is the character styles, this one. Third is the frame styles. Fourth is the page styles and fifth is the list styles. जिस भी स्टाइल के ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे वो स्टाइल आपके टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा. बट फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट द टेक्स्ट. एंड यहाँ पे आपकी दो चीज़ें हो रहा है. वन इज़ द फिल फॉर्मेट मोड एंड न्यू स्टाइल फ्रॉम द सिलेक्शन. इसे हम अभी पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस लर्न अबाउट दिस. मान लीजिए आई हैव सेलेक्टेड दिस हेलो स्टूडेंट 1 और ये आपके नॉर्मल सारे क्या हैं स्टाइल्स हैं. तो सपोज मैंने कंटेंट्स 1 पर डबल क्लिक किया या कंटेंट्स 10 पर डबल क्लिक किया. अब आपने देखा जब आपने कंटेंट्स 10 पे किया तो ये आपका सेंटर में आ गया. अब हम कोई और करके देखते हैं. सपोज हमने ड्राइंग पर डबल क्लिक किया तो आप यहाँ देख रहे हो फ़ॉन्ट भी चेंज हो गया इसका. ठीक है. अब हम कोई और करके देखते हैं. हो सकता है जिसमें इसका जो आपका साइज़ है वो भी चेंज हो जाए. हमने यहाँ पे हेडिंग 1 लिया तो आपने देखा यहाँ पे जो इसका साइज़ है दैट इज़ ऑल्सो चेंज, फॉन्ट हैज़ ऑल्सो चेंज. ये चेंजेस आप यहाँ से देख सकते हो. इट इज़ सेइंग हेडिंग 1 एरियल 16.1 और ये बोल्ड है. सपोज हमने करा हेडिंग 5 तो यहाँ से आप देख सकते हैं हेडिंग 5 में एरियल है और साइज़ हैज़ चेंज टू 11.8. इस तरह से आप कोई भी स्टाइल को चूज़ कर सकते हो. डबल क्लिक करके आपको उसकी जो इफ़ेक्ट्स हैं वो शो हो जाएंगे. अंडरस्टूड दिस थिंग. अब जैसे यहाँ से हम ये लेते हैं. सपोज हमने लिया फुटर तो ये फुटर के अंदर आपका आ रहा है दिस इज़ टाइम्स न्यू रोमन और इसका साइज़ है 12. तो फर्स्ट टॉपिक इज़ दिस. ठीक है कि आप स्टाइल्स का ऑप्शन कहाँ से लेते हैं और डिफरेंट स्टाइल्स को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. इसके बाद हमारा आता है यूज़ फिल फॉर्मेट टू अप्लाई अ स्टाइल टू मैनी डिफरेंट एरियाज क्विकली. अभी हमने नॉर्मल मेन्यू से देखा. अब हम देखेंगे कि फिल फॉर्मेट जो हमने अभी पढ़ा है आइकन देखा है उसकी हेल्प से हम डिफरेंट एरियाज पे फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई कर सकते हैं. तो यहाँ पे वी हैव इज फिल फॉर्मेट मोड. तो आपको इसको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप इसमें से कोई भी एक स्टाइल चूज़ कर सकते हो. जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया हेडिंग 3. अब हेडिंग 3 का पहले हम देखते हैं कि बेसिकली इसका स्टाइल है क्या. सबसे पहले हमने क्या किया स्टूडेंट 3 को हेलो स्टूडेंट 3 को हमने सेलेक्ट कर दिया और हेडिंग 3 पे आप जनरली देखोगे कि तो आपका इस तरह से है. आपका जो फ़ॉन्ट है दैट इज़ एरियल, साइज इज़ 14 और बोल्ड इफेक्ट है और साथ में लेफ्ट अलाइंड है. ठीक है. अब हम ये चाहते हैं कि हमें दूसरे पार्ट से मतलब डॉक्यूमेंट में काफ़ी जगह पे इसी इफेक्ट को यूज़ करना है लेकिन बार बार हम उस इफेक्ट पे जाएं और डबल क्लिक करें. उसके बजाय हम ये चाहते हैं कि एक ही बार कोई ऐसा टूल हो जिसको क्लिक करें और सिर्फ उसको बार बार टेक्स्ट के ऊपर मूव करते जाएं और वो चेंजेस हो जाएं. जैसे आपका फॉर्मेट पेंटर होता है उसी तरह से यहाँ पे हमारा फिल फॉर्मेट होता है. तो हमने फिल फॉर्मेट पे क्लिक किया और अब देखो जब हम इसे टेक्स्ट एरिया में लेकर आ रहे हैं तो ये पेंट बकेट की फॉर्म में चेंज हो गया. कौन सा इफेक्ट सेलेक्टेड है हमारा हेडिंग 3. तो इसको मैं चाहूँ तो IT 402 पे मूव कर सकती हूँ. आप देख रहे हो बिल्कुल इसके जैसा हो गया. इसका यहाँ पे देखो फॉन्ट एरियल हो गया और 14 हो गया, बोल्ड लेफ्ट लाइन सेम इसका था. अब हम चाहें तो इसमें भी कर सकते हैं. ठीक है. तो आप ये देख रहे हो कि हमें बार बार यहाँ पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही. जितनी मर्जी बार या जहाँ पे भी हम अपने डॉक्यूमेंट में चेंजेस करना चाहते हैं सिर्फ एक बार आपको अपने स्टाइल को सेलेक्ट करना है, फिल फॉर्मेट मोड लेना है और जहाँ पे भी आप चेंजेस करना चाहते हैं उसके ऊपर आपको इसको मूव करना है. तो ये हमारा हो गया फिल फॉर्मेट मोड. इस इफेक्ट को आपको ऑफ करना है. दोबारा इसके ऊपर आप क्लिक कर दो तो दोबारा आपका कर्सर जो है वो आई शेप में
चेंज हो जाएगा। क्लियर दिस थिंग। नेक्स्ट आपका थर्ड पॉइंट है क्रिएट एंड अपडेट न्यू स्टाइल फ्रॉम अ सिलेक्शन। इसमें हमें क्या करना है, अपने आप से एक न्यू स्टाइल क्रिएट करना है और उसे अपडेट करना है। तो यहाँ पे हमारा हेलो स्टूडेंट 2 सेलेक्टेड है। वी हैव गॉन टू द फॉर्मेटिंग टूल बार और यहाँ से हमने कोई भी एक फॉन्ट ले लिया। आप इसमें से कोई भी चूज कर सकते हो। सपोज हमने यहाँ से ये ले लिया, ठीक है। इसको अगेन सेलेक्ट करते हैं। फ्रैंकलिन गॉथिक मीडियम इस नेम से है। साइज हम इसका थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। सपोज हमने इसको कर दिया 28 और यहाँ से हमने इसे बोल्ड भी रहने दिया और इटैलिक भी कर दिया, ठीक है। तो ये आपका एक स्टाइल क्रिएट हो गया। अब आई वांट कि ये जो इसका फॉन्ट है फ्रैंक गॉथिक मीडियम ये रहे, 28 साइज और बोल्ड इटैलिक रहे, और ये स्टाइल मुझे कहीं और भी यूज करना है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन। ये जो सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ से न्यू स्टाइल ले लेगा। तो मैंने इसको नाम दे दिया सपोज XYZ, ठीक है, और हमने कर दिया ओके। तो अब आप ये देखो, जो आपने यहाँ पे XYZ दिया था, नेम दिया था न्यू का, तो यहाँ पे XYZ अपने आप आ चुका है। और फिर यहाँ से जाके आप इसे कर दोगे अपडेट स्टाइल, ये आपका इसके अंदर ऐड हो गया। अब मान लो ये स्टाइल मुझे किसी और टेक्स्ट पे लगाना है, सपोज हेलो स्टूडेंट 1 पे लगाना है। तो हमने इसको सेलेक्ट किया, XYZ पे आपको क्या करना है, डबल क्लिक करना है। अब आपने देखा हेलो स्टूडेंट 2 में क्या था, फ्रैंकलिन गॉथिक मीडियम 28 साइज था, बोल्ड इटैलिक था। जब आपने फर्स्ट के ऊपर लगाया तो वो भी इसी तरह से चेंज हो गया, हेलो स्टूडेंट 1 फ्रैंकलिन गॉथिक मीडियम 28 साइज बोल्ड इटैलिक। समझ में आ गया। दिस इज द थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट इज लोड अ स्टाइल फ्रॉम अ टेम्पलेट और अनदर डॉक्यूमेंट। इस केस में व्हाट यू हैव टू डू इज you have to take some another document, use a style in that one and take that style in the first document. हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट फाइल है अनटाइटल्ड 1, तो आप यहाँ से एक न्यू फाइल लेंगे पहले, क्योंकि हमें दूसरे टेम्पलेट या फाइल में से उस इफेक्ट को लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने न्यू लिया फाइल, अनटाइटल्ड 2 आ गया, और यहाँ पे हमारे अगेन स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शन सेम है। अब मैंने यहाँ पे लिखा हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। हमने फिर क्या किया, इसको हमने सेलेक्ट किया और एक पर्टिकुलर इसका फ़ॉन्ट लिया। यहाँ से हमने सपोज ये फ़ॉन्ट ले लिया और इसका हमने साइज भी चेंज कर दिया, (44) और हमने इसको बोल्ड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको एक न्यू स्टाइल एज अ क्रिएट कर दो और इसका कुछ नेम दे दो। पहले हमने XYZ दिया था, तो हमने इसको दे दिया DEF, ठीक है। इसका क्या नेम हो गया, DEF। अब आप देख रहे हो कि जिस डॉक्यूमेंट में हम वर्क कर रहे होते हैं वहाँ तो ये अपडेट हो जाता है, लेकिन इस स्टाइल को अगर हमें अपने पहले वाले या बाद वाले डॉक्यूमेंट में यूज़ करना है तो हम कैसे करेंगे। उसके लिए फर्स्ट यू हैव टू सेव योर दिस फाइल। सो गो टू फाइल ऑप्शन एंड क्लिक ऑन सेव ऑप्शन और यूज़ द शॉर्टकट की Ctrl+S, ठीक है। नाउ आई हैव टू सेव माई फाइल। ये आपकी फाइल कहाँ सेव हो रही है, डॉक्यूमेंट्स में सेव हो रही है। तो मैंने सपोज फाइल का नेम दे दिया स्टाइल, ठीक है। फाइल का नेम है आपका स्टाइल और इसका सेव एज टाइप है आपका .odt। क्लिक ऑन सेव, ठीक है। अब हम जाएंगे अपनी पहली वाली डॉक्यूमेंट में, उसका नेम है अनटाइटल्ड 1, हमने उसको सेव नहीं किया। यहाँ हमने सपोज ये वाला है हेलो स्टूडेंट 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, वो वाला स्टाइल लेके आना है। सेलेक्ट किया, अब आप इस ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से लेंगे लोड स्टाइल्स। कौन सा ऑप्शन, लोड स्टाइल्स। आफ्टर क्लिकिंग ऑन लोड स्टाइल्स ऑप्शन, दिस टाइप ऑफ विंडो विल ओपन। यू हैव टू क्लिक ऑन फ्रॉम फाइल। नाउ व्हाट वाज द नेम ऑफ आवर फाइल, स्टाइल नेम था हमारी फाइल का। तो यहाँ से हमने स्टाइल लिखा और हमने किया इसको ओपन। अब आपको याद होगा कि हमने इस केस में जो नेम लिया था स्टाइल का वो क्या लिया था, DEF। ये है DEF। तो आपने क्या किया, इसको आपने सेलेक्ट किया और यहाँ से आपने DEF पे डबल क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे दिख गया, वहाँ पे क्या था आपका विवाल्डी 44 बोल्ड,
एक बार हम दोबारा दूसरे डॉक्यूमेंट में जाके चेक करते हैं जो हमने सेव किया था। हमने हेलो स्टूडेंट्स लिखा था, इसका क्या था, फ़ॉन्ट विवाल्डी था, साइज़ 44 था और हमने बोल्ड और लेफ्ट अलाइन किया था। तो सेम टू सेम आपका जो स्टाइल है वो आपका यहाँ पे भी आ गया। ठीक है, आप यहाँ से इसको चेक कर सकते हो। क्लियर दिस थिंग। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है क्रिएट अ न्यू स्टाइल यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपको लाना है, अब न्यू स्टाइल क्रिएट करना है। पास है IT402, सेलेक्ट किया हमने इसको हमने एक पर्टिकुलर फ़ॉन्ट दे दिया और हमने इसको एक पर्टिकुलर साइज़ दे दिया, सपोज 44, और फ़ॉन्ट हमने दिया हुआ इसको अल्जेरियन, और इफेक्ट हमने इसको दिया बोल्ड और अंडरलाइन। लेफ्ट अलाइन ये ऑलरेडी है। तो ड्रैग एंड ड्रॉप में आपको क्या करना है, जो आपने एक स्टाइल बनाया उसको लेफ्ट माउस बटन से इसको यहाँ पे क्लिक करना है और लेफ्ट माउस बटन को होल्ड करके और यहाँ पे ले आना है इसमें। जैसे ही आप यहाँ लेके आओगे, दिस टाइप ऑफ डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, इट विल आस्क फॉर क्रिएट स्टाइल। तो यहाँ पे आपको स्टाइल का नेम देना है, सपोज मैंने दिया S6। ये जो नीचे आपको नेम्स दिख रहे हैं ये पहले हमने क्रिएट किए हुए हैं। ठीक है, अगर आपने एक बार भी क्रिएट नहीं करा हुआ तो ये बॉक्स आपको ब्लैंक दिखेगा। तो इस केस में हमने S6 क्रिएट किया और हमने क्लिक किया ओके। अब मान लो जो ऊपर वाली टेक्स्ट है मुझे इसको भी सेम इफेक्ट में चेंज करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेलेक्टेड एंड यहाँ पे हमें दिख रहा है S6। तो यहाँ से हमने इसको किया डबल क्लिक। अब आप देख रहे हो डबल क्लिक करते ही ये था हमारा अल्जेरियन 44 बोल्ड अंडरलाइन और ये भी हमारा क्या हो गया, अल्जेरियन 44 बोल्ड अंडरलाइन। इस तरह से आपके ड्रैग एंड ड्रॉप के चेंजेस होते हैं। तो स्टाइल्स का जितना भी था वो इस पार्ट 1 में हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में वी विल सी अबाउट द पार्ट 2। Thank you for watching and don't forget to like, share and subscribe.